by the Congress party is this. Is it true that Sri Gandhi met Sunita Vishwanath during his trip to the United States of America? Ladies and gentlemen of the press, you are aware that I myself had done a press conference with regards to George Soros's intentions to destabilize a democratic elected government in India. Question is, when it is known to every Indian what George Soros intends to do, why is Mr. Gandhi hobnobbing with those who are funded by George Soros? It is also evident that this is not the only Soros connection. Even in Mr. Gandhi's Bharat Jodo Yatra in Karnataka, the Global Vice President of the Open Society Foundation, funded by Mr. George Soros, was found accompanying Sri Gandhi. What is extremely distressing is the link with the Islamic Circle of North America. Those in the public domain who will research how the registration process for NRI interaction with Mr. Gandhi in New York ensued will find contact of a gentleman, Tazim Ansari. Mr. Ansari has an organizational link, it is believed, on the basis of publicly available records with the Jamaat-e-Islami. I attract your attention to a 116th Congress Resolution 160 in the House of Representatives on the 28th of February 2019. This resolution expressed concern about the threat posed to democracy by theocratic groups operating in South Asia. And a part of the resolution speaks about the affiliation between the Islamic Circle of North America and Jamaat-e-Islami. Irrespective of these documents available in public domain, the Congress has neither refuted a meeting between Mr. Gandhi and an individual funded, financially supported by George Soros, nor has the Congress party rejected the role of a certain Mr. Tazim Ansari, who has links with an organization that a US resolution in the House of Representatives openly declares is affiliated to Jamaat-e-Islami. It is expected that the Congress party, given its draconian past, will leverage any instrument available to it to stifle those who voice an opinion against the Gandhi family. I have with me another article in hand. I will deliberately not name the publication or the reporter so that their safety is not endangered by the Congress party.
But I will quote from this article which is available in the public domain. And that article itself also indicates that how the Sorosian West looks at Mr. Gandhi as a pawn to checkmate not just Modi, but India. To file an FIR because the truth was spoken just indicates that as far as the emergency goes, in the Gandhi family, the apple has not fallen far from the tree. मीडिया के मित्रों को आभार व्यक्त करती हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी के यूएस विजिट के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब पधारकर हमारी बात देश को पहुंचाना चाह रहे हैं। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। पब्लिक डोमेन में, इंटरनेट पर यह जानकारी भी उपलब्ध है कि श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के, श्री अंसारी, उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। ऐसा क्यों है कि पब्लिक डोमेन में जिनका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है, उनका सहारा लेने की कांग्रेस पार्टी को नौबत आ पड़ी। जॉर्ज सोरोस का और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गांधी से ताल्लुक नया नहीं, पुराना है। एक और प्रकाशन में यह स्पष्ट हुआ है, इंटरनेट पर भी ये फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। सलील शेट्टी नाम के एक सज्जन ने, जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान है, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। तो जो जॉर्ज सोरोस डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग, उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं,
ऐसे संगठन के साथ और उस संगठन से संबद्ध लोगों के साथ क्यों गांधी खानदान अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहा है? आप सबके ध्यान में आया होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि इस विषय को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का निश्चित रूप से पॉलिटिकल स्वरूप देश को समझ आता है। जून का महीना है, आपातकाल की याद निश्चित ताजा करते हुए गांधी खानदान ने पुनः देश को यह प्रमाण दिया है, चाहे राज्य में उनके पास सत्ता आ जाए, उस सच को दबाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन सत्य यह है, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में, कि जिनका सहारा लेके उन्होंने मीटिंग की, उनका संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। जिनके साथ उन्होंने मीटिंग की, उनका संबंध जॉर्ज सोरोस से है। राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की दृष्टि से अगर सोचे तो सवाल वाजिब है। जो व्यक्ति कहता है कि आपके देश की सरकार को वो किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे देकर उखाड़ फेंकेगा, जो विदेशी कहता है, उसके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं दोबारा कह रही हूं, आज की ये मेरी विषय से जुड़ा कोई अगर सवाल है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं दोबारा कह रही हूं कि आपने आज तक किसी ऐसे गांधी खानदान के व्यक्ति को देखा जो जमाते इस्लामी द्वारा सपोर्टेड व्यक्तियों के माध्यम से अपनी मीटिंग करे? आपने आज तक अपनी पूरी पत्रकारिता के करियर में क्या कभी किसी राजनेता को देखा जो ये कहे कि हम उनके साथ जुड़ते हैं जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं? मैंने ये भी नहीं कहा प्रज्ञा, मेरे हाथ में एक और आर्टिकल है जिसमें एक पत्रकार ने ये कहा है। मैं जानबूझकर पत्रकार और पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रही ताकि पत्रकार को कोई आंच ना आए, लेकिन ये सारा डिटेल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। नीरज जी, चुनाव लड़ना, चुनाव हारना और जीतना लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया का एक अभिन्न अंग है। लेकिन मेरे जीवन में कम से कम राजनीति के 20 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सत्ता के लिए इतना मोहित हो कि वो उनसे हाथ मिलाए जिनका संबंध जमाते इस्लामी से है। सत्ता के लिए इतना मोहित हो, इतना आकर्षित हो कि उनसे मुलाकात करे जो आपकी देश की व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने का ऐलान करते हैं धड़ल्ले से। कोई भी राष्ट्रभक्त, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं भाजपाई हूं, किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए, हम घर में अपने झगड़े सुलझा सकते हैं। बाहरी ताकतों से मिलकर क्या देश को संदेश देना चाह रहे थे?